यहाँ पे दिया गया स्टीफन के थ्रू। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी रहे इंडियन कम्युनिटी के, और कंसर्न्स रहे कि कुछ डाउट्स भी थे, कुछ डर भी हैं कि हाँ, कुछ इस तरह का जो मार्केट का ट्रेंड है या जो माहौल है, कि अगर कोई भी प्रमोशन एक्टिविटी आती है किसी कंपनी की साइड से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में डर होता है। इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए स्टीफन डायरेक्टली आप लोगों के बीच में आज आए हैं। और उनके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। सो ये अभी मैसेज है, और बाकी अभी फिर सर आगे बात करते हैं। सो यस, ओवर टू यू सर। Yeah, some of the words are so much like English, I must say. Just hearing it. All right, so thank you, Abby. So I will continue. Well, I will do it short by short, time by time. So श्योर। I want to make it clear that I'm not here to defend anything. I fully understand that these concerns they come from past imperfect experiences and from a deep love and an expectation for BG. So it's precisely because we care that we are cautious, right? And I sincerely appreciate everyone expressing these concerns. It gives us the chance to speak heart to heart and align ourselves. Over to you. राइट, सो बेसिकली स्टीफन कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ कि वो इस चीज़ को डिफेंड नहीं करना चाहते हैं, और बिल्कुल ये जो कंसर्न्स इंडियन कम्युनिटी के हैं, ये बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, जायज़ हैं, वैलिड हैं। और क्योंकि यहाँ पे इंडियन मार्केट में कुछ इस तरह की चीज़ें रही हैं ओवर द पास्ट, पिछले कुछ महीनों और सालों में हमने देखा है कि जो भी कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कोई भी कंपनी या प्लेटफॉर्म लेकर के आता है, उसके बाद वो उनकी इंटेंशन होती है कि मनी कलेक्ट करना एंड डिसअपियर होना। तो इस तरह से कुछ कंसर्न्स जो हम लोगों के रहे हैं, इसी को एड्रेस करने के लिए आज स्टीफन हमारे बीच में है। और ये सर को भी एक मौका मिला है इंडियन कम्युनिटी और इस माहौल को जानने का, और सिंसियरली सिंसियरिटी के साथ में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं कि बीजी अलग क्यों है, कैसे है। तो वो बातें हम यहाँ पे बीजी के बारे में सुनेंगे सर से। सो ओवर टू यू सर। Thank you. All right, so now first let's address these concerns and talk about my thoughts and our shared future. Let me basically emphasize again the purpose of this Thanksgiving event is simple and pure. It comes from a heartfelt wish to express gratitude, and BG has grown from a single seat to what it is today. And every branch and leaf reflects the sweet and wisdom of each one of you. So I know that without efforts, BG wouldn't be what it is today. So therefore, this event is funded from a portion of my personal compensation as a way to give back to everyone. राइट, सो जैसा कि स्टीफन बता रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो भी कंसर्न्स हैं बिल्कुल जायज़ हैं। और यहाँ पे अगर कुछ भी बीजी उस तरह से नहीं है कि कोई भी कॉम्पनसेशन प्लान की तरह कोई भी आए यहाँ पे मार्केट में और प्रमोशन एक्टिविटी शो करे, और उसके बाद में क्या होता है कि फिर वो डिसअपियर होते हैं। बीजी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं हम सभी लोग, इसको चैलेंज की भी तरह लेते हैं कि जितनी भी इस तरह की एक्टिविटी इन द पास्ट होती आई हैं, उनको चलिए गलत साबित करते हैं। ये हम सब लोगों के पास में एक मौका है। सर थैंक यू, ओवर टू यू। So it's like when there's a celebration at home, right? And parents set aside their savings to prepare gifts for their children. It doesn't involve my complicated business model. It's simply a gesture of goodwill, a tangible gift intended to help everyone genuinely increase their personal wealth, of course. Regarding concerns about the event ending abruptly, so under the structure, there's no longer an issue. So from the moment you receive your reward, the value of this event for you is already realized. You might ask, what about after the event ends, right? And I want to clarify that this event is essentially a temporary bonus. Whether it exists or not does not affect the basic earnings you would gain by inviting friends. If you participate, it's a nice extra bonus. So if you observe, you're only temporarily giving up this additional surprise. And either way, it does not affect your existing rights as a BG family member. I mean,
राइट, सो सबसे पहले तो हमें फ्रेंड्स ये जानना और समझना चाहिए कि ये जो प्रमोशनल एक्टिविटी है ये क्या है। बेसिकली हमें ये जानना है, समझना है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इंडिया में तो इतना नहीं, लेकिन यूएस कल्चर में थैंक्स गिविंग एक वाइडली एक सेलिब्रेटेड फेस्टिवल की तरह इसको मनाया जाता है यूएस के अंदर। और ये काफ़ी बड़ा इवेंट है। जैसे हम लोग इंडिया में होली दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और पूरे एक साल का बड़ा त्यौहार होता है, ठीक इसी तरह से क्रिसमस या न्यू ईयर की तरह थैंक्स गिविंग भी होता है यूएस के अंदर, जिसके लिए तकरीबन न्यू ईयर से पहले एक महीने पहले ही क्रिसमस या न्यू ईयर की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि दिवाली में हम लोग एक महीने पहले से ही सारी प्रिपरेशन करते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं और उनको शेयर करते हैं। सिमिलरली यूएस के अंदर भी ये चीज़ होती है और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। थैंक्स गिविंग एक सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होता है उनको। तो उसी जेस्चर के लिए, क्योंकि स्टीफन ने वर्ल्ड वाइड ये जो प्रमोशनल एक्टिविटी दिया है, ये एज ए गिफ्ट की तरह वर्ल्ड पूरे कंप्लीट रीजन पूरे दुनिया को ये दिया है, और जिसमें हमारी इंडियन कम्युनिटी भी शामिल है। अगर हम इंडियन कम्युनिटी को अलग रखते तो ऑब्वियसली ये काफ़ी गलत होता कि यूएस के लिए ये इवेंट होता लेकिन इंडिया के लिए नहीं होता। तो एज ए होल पूरे कंप्लीट एक फैमिली की तरह, चाहे वो किसी भी कंट्री में बीजी फैमिली हो, उसको इस तरह से कंसिडर किया गया है। और यहाँ पर इसको एक इवेंट की तरह लेना है जो कि वीकली। अच्छा, आपने अगर याद होगा एक महीने पहले जब हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट किया तो हम लोगों को फिजिकल गिफ्ट्स मिले थे। राइट, हम सबको कुरियर से हमारे एड्रेसेस पर वो गिफ्ट्स आए थे। सिमिलरली यूएस के अंदर थैंक्स गिविंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसको एक गिफ्ट की तरह हमें लेना है। प्रमोशनल एक्टिविटी जो ये वीक कंप्लीट रहेगा, इससे आपका कोई भी बिजनेस अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि बिजनेस को और इंक्रीमेंट मिलेगा और ज़्यादा इंक्रीज होगा बिजनेस। राइट, सो इसको हमें पॉजिटिव लेना है। राइट, सो थैंक यू सर, ओवर टू यू। Let's wait for them. Yes, I You're a, muted them, sir. you're a co-host. You can deal with that. Yes sir, Okay. yes sir. I would like to say a little bit about the history of Thanksgiving, if you don't mind. Probably you already know that about the ship, which was the name of Mayflower, uh, who was bringing more pilgrims to uh, North America. Yeah, personally, with my age, when I studied more about this celebration, I figured out that this is a truly amazing gift, which Native Americans they provide the pilgrims with food. Right, that's what happened out of nothing, even when they were at the stage of war or some sort of that. Nevertheless, we're trying to look at the bright side of this celebration, of course. Just sharing, having, and receiving, and all that. It's a good gesture. We're all people, and we're supposed to treat each other nicely, even if we are from Right, a different place. करेक्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थैंक्स गिविंग क्योंकि हमारे लिए नया है, लेकिन उसके हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली थैंक्स गिविंग है क्या। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर कंट्री के अपने अपने कल्चर और ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हर एक फेस्टिवल के पीछे एक स्टोरी होती है, हर एक कल्चर या ट्रेडिशन होता है। या हर फेस्टिवल के पीछे एक, जैसे दिवाली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, पूरा एक रामनवमी मनाई जाती है, दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके पीछे एक पूरा एक पौराणिक कथाएं हैं, हिस्ट्री है। राइट, एक हमारे सनातन धर्म की। ठीक इसी तरह से सिमिलरली हर कंट्री के अंदर हर एक फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई एक कथा होती है, कोई स्टोरी लाइन होती है। तो अगर हम थैंक्स गिविंग को समझने की कोशिश करें तो आज से काफ़ी साल पहले, सैकड़ों साल पहले, कुछ पिलग्रिम्स, जिसको मैं कह सकता हूँ कि कुछ वॉर के टाइम पे होता है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और थर्ड, आई मीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग यूके से, यूरोपियन कंट्री से यूएस की तरफ मूव हुए थे। तो वहाँ उस मूविंग में, शिफ्टिंग में जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, अमेरिकन सिटीजन्स, उन लोगों को आप उनको रिफ्यूजी भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सताए हुए लोग जो अमेरिका पहुंचे थे, उनको वहां पे देखिए। मैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ थैंक्स गिविंग, मैं पर्सनली, मैं अगर अपनी बात करूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाया, स्टडी कर पाया, और जैसा स्टीफन सर ने मुझे बताया उसके बारे में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो वहाँ पे एक एज ए गुड जेस्चर
उनको फूड दिया, फूड दिया, साथ ही साथ कपड़े दिए, रहने की जगह दी, मतलब एक पूरी तरह से उनको अपने फैमिली जैसा ट्रीट किया। तो तब से लेके थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक्स गिविंग का मतलब ही अगर इंग्लिश में और हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो थैंक्स गिविंग मतलब आप कुछ दे रहे हैं, कुछ अच्छी सोच, अच्छी भावना के साथ में आप किसी के साथ, इट इज ऑल अबाउट happily sharing and having all the happiness with everyone, right? So it is, यही थैंक्स गिविंग है। और जो कि यहाँ पे इंडिया में भी अब ये इसको एक गिफ्ट की तरह हमें दिया जा रहा है, मिल रहा है, तो इसको हमें पूरे खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए सर। थैंक यू, ओवर टू यू सर। Right, so back to the topic, far from the history. So I also या know that many members may feel sort of frustrated or pressured when sharing with friends who express doubts. I totally understand that. So here I encourage you to let go of that burden. Our goal in the sharing is not to convince skeptics due to connect with the potential collaborators. It's normal for friends to feel cautious, right? So as we all do. So I suggest not rushing to argue or do have any communications like that. So you can gently say, no worries, I understand your caution, but and you can observe first, or you can create a bond chat account and join in our group. So everything here is transparent, clear. So you can see with your own eyes and feel with your heart whether what we are doing is real and lasting. Over to you, Abing. राइट। ओके, सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात स्टीफन सर ने हमारे सामने रखी कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं कह सकता हूँ कॉमन डाउट या क्वेश्चंस हमारे नो मार्केट में, फील्ड में हमें फेस करना पड़ता है जब भी हम बीजी को बिजनेस एज अ बिजनेस लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे अंदर खुद ही एक डाउट रहता है या डर रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन रहती है। हम बीजी बिजनेस को शेयर नहीं कर पाते लोगों के साथ में। तो सबसे पहले हमें अपना खुद का वो डाउट या मन का जो डर है वो उसको खत्म करना पड़ेगा। ये मैं पर्सनली भी अपनी जो जूम सेशंस होते हैं उसमें ये बात बोलता हूँ कि डर के साथ आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट? सो डर को निकालना पड़ेगा। हाँ, जब हम खुद के डर को निकाल करके फुली कॉन्फिडेंस के साथ में बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसका एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है। बट एट द सेम टाइम फील्ड में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स भी सुनने को मिलते हैं, और जो कि जेन्युइन कंसर्न्स हैं लोगों के, क्योंकि उन इन द पास्ट उन सभी लोगों के साथ में, आपके साथ में वो चीज़ें, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जुड़े रहे हैं, होते रहे हैं। तो हमें उनके कंसर्न्स को वेलकम करना है, किसी भी तरह से आर्गू नहीं करना है, आर्गूमेंट में नहीं जाना है किसी भी डिस्कशन में, कोई हॉट डिस्कशन या आर्गूमेंटिव डिस्कशन ना हो करके, बल्कि उनके कंसर्न्स को वेलकम करते हुए हमें उनको एक सॉल्यूशन देना है कि आप एक काम करिए कि आप पहले बॉन्ड चैट उनका अकाउंट आप क्रिएट करा दीजिए। उनको मत बोलिए कि आप बीजी को ज्वाइन करिए, उनको मत कहिए कि आप डिपॉजिट करिए। अगर आपको लगता है कि डाउट है, कुछ मन में डर है, तो आप सबसे पहले बॉन्ड चैट पे फ्री रजिस्ट्रेशन अपना अकाउंट क्रिएट करिए और स्टीफन सर के साथ जुड़िए और रोज़ा को इनवाइट दी। और रोज़ा को जब आप इनवाइट करते हैं तो रोज़ा विल ऐड यू इन सम ग्रुप्स। तो होगा क्या उससे कि वो सारी एक्टिविटीज़ खुद से अपनी आंखों से देखना स्टार्ट कर देंगे, आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं। तो वो खुद से जब देखेंगे सारी चीज़ें, पूरे वर्ल्ड में पूरी कम्युनिटी जो जिस तरह से बीजी को लेकर के एक्साइटेड है और सभी लोग खुश हैं यहाँ पे, तो वो हैप्पीनेस और जो सारी एक्साइटमेंट को जब पर्सन देखता है तो यस, वहाँ से उनका बिलीफ बनना स्टार्ट हो जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स वो वहाँ से बिजनेस बिजनेस आपके साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सर, ओवर टू यू। सॉरी आई एम टेकिंग लिटिल लॉन्गर। Totally fine, totally understandable. Like no problem at all. Even I या think I'm starting to understand you in Hindi. ओके, माय प्लेजर सर। थैंक Slowly यू। but surely, maybe I should learn it. So, also the most powerful form of sharing is always leading by example, right? We know it from the या history, we know it these days. So your growth on this platform, each change in your income and the determination in your eyes are the most compliant stories, right? Inspire others through your own experience, not just empty words of beautiful phrases. Trust comes from seeing and verifying, right? Because we have a quote like that at BG. We don't trust, we verify. So for our internal team members, if you feel uncertain about the event or the platform's future, my advice is to step up, actively learn, and gain a deeper understanding. And of course, you can compare, Abby. राइट।
सो यहाँ पे स्टीफन सर का कहना है कि देखिए, पहली चीज़ तो जो हमारा सेल्फ कंपैशन होता है, जो सेल्फ बिलीफ होता है, वो हमें लाइफ में आगे लेके जाता है। और अगर हम इसी चीज़ को बीजी में अप्लाई करते हैं तो यस, वो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ बिलीफ एंड कन्विक्शन होता है प्लेटफॉर्म के प्रति या प्रोजेक्ट के प्रति, वो हमें लेके जाता है। और सर ने मेरी भी बात की कि यहाँ पे कुछ ही महीने के अंदर मैंने जिस डेडिकेशन के साथ में बीजी को एक्सेप्ट किया, और जिस प्लेटफॉर्म को मैंने पूरी शिद्दत के साथ में इसको प्रमोट कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है आपके काम पे, आपके लेवल पर। वही कॉन्फिडेंस हम सबको चाहिए। हाँ, कॉन्फिडेंस अगर शुरुआत में नहीं आता है, धीरे धीरे बिल्ड होता है, ट्रस्ट भी धीरे धीरे बिल्ड होता है। और बीजी आपको कभी भी ये नहीं कहता है कि आप आंख बंद करके ट्रस्ट करें। जैसा अभी लास्ट अभी स्टेटमेंट में मैंने बताया कि सबसे पहले आप बॉन्ड चैट पर आइए, और अपने प्रॉस्पेक्ट्स को भी। और बॉन्ड चैट पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बीजी को लर्न करने का, बीजी को बहुत डीपली समझने का, बॉन्ड चैट पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड चैट पे जब आप अकाउंट क्रिएट करवाते हैं तो उनको समझ में आता है कि सारी एक्टिविटी हैं, अपने आप चीज़ें कन्वर्ट होती चली जाती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाता है। और स्टीफन हमेशा ये चीज़ एंकरेज करते हैं कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, ब्लाइंडली बीजी को ज्वाइन मत करिए। फर्स्ट आप चीज़ों को समझिए, और उसके बाद खुद से वेरीफाई करिए, खुद से सारी चीज़ों को देखिए, और खुद से सब सब चीज़ें जब आप वेरीफाई करके जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? वो पॉसिबल होगा जब आप खुद बिजनेस में एक्टिव रहेंगे एज ए स्पॉन्सर। आपके अंदर वो खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपके प्रोस्पेक्ट्स के सामने आप पहले, सबसे पहले खुद लर्न करिए। लर्निंग होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस होगा तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाएंगे। होता है ना कि हमारी टीम हमें देख रही होती है, तो अगर आप खुद से कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे और सभी को बॉन्ड चैट पर एक्टिव करवा पाएंगे, आपका काम बहुत आसानी से इजीली होता चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कितने कम समय में आपकी टीम बढ़ती चली गई और आपके लेवल्स चेंज होते चले जाएंगे। थैंक यू सर, ओवर टू यू। So, and also, my friends, we must acknowledge that most of fears and worries in the world come from the unknown and probably a lack of understanding. Feeling confused because you don't understand how a project operates or unclear about the platform's future. It's completely normal, of course. So I encourage everyone to actively familiarize yourself with our project, materials and everything, participate in internal meetings, and communicate with team leaders and core members. So the deeper your understanding, the more your uncertainty will fade, and the more confident your steps forward will become. So probably we'll think about the some sort of manual book to publish for the new members, of course. All right, Abby. राइट। राइट, सो जैसा कि अभी पिछले स्टेटमेंट में मैंने बात की कि यहाँ पे जो हमारे मन में डर होता है, वो डर क्यों होता है? हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से। लेकिन वो डर को निकालना भी ज़रूरी है। वो जो क्वेश्चंस होते हैं, फियर होता है, डाउट्स, अनसर्टेनिटीज होती है, वो निकालना ज़रूरी है। और वो निकलेंगे कैसे? बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे है, आप जितनी भी इंटरनल जूम मीटिंग्स हो रही हैं बीजी की, उनको ज्वाइन करिए, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को इनवाइट कीजिए, हर एक मीटिंग में आप एक्टिव रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए, बॉन्ड चैट पर भी एक्टिव रहिए। बॉन्ड चैट की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, आप देखते होंगे कि जूम मीटिंग्स तो चलिए ठीक है, कभी कभी स्टीफन सर का आना होता है ड्यू टू टाइट स्केड्यूल, बट एट द सेम टाइम फ्रिक्वेंटली वो बॉन्ड चैट पे इंडिया ग्रुप मीटिंग्स में आते हैं और हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। उनमें आप एक्टिव रहिए। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको जानने को मिलेगा बीजी का। और बीजी, आप कंपेयर करिए मार्केट में सभी प्लान्स के साथ में, प्रोजेक्ट्स के साथ में कंपेयर करिए, वेरीफाई करिए हर चीज़ को। जब तक आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप इसको नहीं समझ पाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे। लर्न करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और लर्निंग के लिए आपको खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है हर मीटिंग्स में, और बॉन्ड चैट पर भी एक्टिव रहना ज़रूरी है सर। थैंक यू, ओवर टू यू सर। So, like I said before, empty talk about trust is just simply powerless. Confidence is always built on ironclad facts, right? So look at the real cases happening around us in BG. Recently, our team has seen one level 7 member after another emerge. So these aren't just names, they are ordinary people who started from zero, just like us, and they may be friends
you interact within or in a group every day, so as soon as possible. But they succeeded, providing that this path is feasible and valuable. So, and that's not all. I can share an exciting preview in early December. Our BG team, well sharing, BG well sharing, it will have a new level 8 members. So this will be a historic milestone we create together. Yeah. राइट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें बीजी में सक्सेस कैसे पानी है। देखिए, खोखली बातों से कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। राइट। और जब तक आप सिर्फ बातें बातें करेंगे, काम नहीं होगा। तो सिर्फ बातों से कुछ नहीं चलता। उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ बातों से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आता है जब आप समझेंगे, जानेंगे और उसको एक्शन में रेप्लिकेट करेंगे। जब एक्शन में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लेवल्स चेंज होते चले जाएंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं अगर यहाँ पे अपना भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने भी बीजी को आज से 4 साढ़े 4 महीने पहले स्टार्ट किया और लेवल 6 पर हूँ। और ना ही मैं, बल्कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेवल 4 5 6 इवन 7। और यहाँ पे देखिए, बीजी के अंदर ये सक्सेस रुक नहीं रही है। ये अल्टीमेटली इंक्रीज होती जा रही है। एक के बाद एक सक्सेस स्टोरीज हम देखते जा रहे हैं। और सरप्राइजिंगली आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ज़्यादा नहीं, अभी दिसंबर के अंदर ही हम बीजी का पहला लेवल 8 यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को जानकारी है, पता होगा कि लेवल 7 से अब लेवल 12 तक इंक्रीज किए जा चुके हैं। तो यस, लेवल 8 बहुत जल्दी हमें दिसंबर में एक देखने को मिलेगा, बीजी के फर्स्ट लेवल 8। तो ये जर्नी, ये सक्सेस स्टोरीज रुक नहीं रही हैं। तो हमें अपने अंदर देखना है कि क्या हम रुके हुए हैं, क्योंकि लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के लेवल्स क्वालिफाई हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो हमें अपने अंदर देखना है कि हम कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, या एनालाइज करना पड़ेगा और फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, थैंक यू, ओवर टू यू। So I'd like just to emphasize, aren't these real life examples, far more powerful than any rumor you might hear about us? Well, I don't even mention about them, mind about them. So success is around you, and the role models are within reach. So this is the most solid foundation of our confidence. So let me also share the grand vision we're building together for our 2026 plan. So at the core of this plan is a transformative initiative. Level 7 members will have the opportunity to receive official company equity. So what does this mean? It means you will no longer just be a participant in the platform, you will truly become one of its owners, sharing in BG's future development, glory and dividends. This is a real career, a legacy-worthy asset. So, friends, if you're hesitating because of rumors or afraid because of past shadows, past experience with other platforms, look at those who are running ahead, right? These people, you know them. We have plenty of these leaders, so such as Abby, of course, and we also have other leaders here present at this meeting. So they are using every minute to create accumulate advantages. So and surpass peers who started from the same line. Time waits for no one, and opportunities pass quickly. So today's hesitation may quietly cost you a chance to become a shareholder tomorrow. Abby. देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमारे सामने स्टीफन सर ने दी। और देखिए, हमारे आसपास ही सक्सेस स्टोरीज हैं और हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को एक कन्विक्शन के साथ में अगर हम बीजी में काम करते रहें, हमारा फ्यूचर इतना ब्राइट है, हमारी सोच से भी ज़्यादा, हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा। आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि बीजी में देखिए, कुछ महीने के अंदर, हमें सालों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ महीने में सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही होती है। बशर्ते आप लगे रहें, स्टेबल रहें, फोकस रहें, डेडिकेटेड रहें और कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ में अगर वर्क करते रहें, सो विद इन फ्यू मंथ्स ओनली आप जो चाहें, जिस लेवल को चाहें, वो क्वालिफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी गुड न्यूज़ हमारे सामने है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं कुछ ही महीने में। कैसे? लेवल 7 एंड अबव। करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक इट इज लेवल 7 अबव, राइट?
Right, राइट। सो correct. लेवल 7 एंड अबव, जितने भी लोग लेवल 7 क्वालिफाई करते जाएंगे। अच्छा, आपको तो पता ही होगा कि प्रोफेसर स्टीफन का क्या विजन है। ही इज़ लाइक एन ओवेशनरी लीडर। उनको आईपीओ लेके आना है अपना। आईपीओ कहाँ पर? यूएस के अंदर। अच्छा, यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है। सोचिए, वहां उस स्टॉक मार्केट में अपना खुद का एक आईपीओ लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जब आईपीओ आएगा ना, तो लेवल 7 और उसके ऊपर जितने भी लेवल्स होंगे, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट बीजी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। राइट। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तालियां होनी चाहिए इसके लिए। क्लैपिंग, वी शुड क्लैप फॉर दिस, क्योंकि ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है। क्योंकि ये कंपनी, ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोजेक्ट हमें, इट इज़ करियर, बेसिकली इट इज़ करियर प्लान फॉर अस। यहाँ पे वी कैन, इसका नाम ही एज द नेम सजेस्ट, वीजी वेल्थ शेयरिंग, सो वेल्थ क्रिएशन। ये कोई अ, अमीर बनाने की स्कीम नहीं है फ्रेंड्स। इट इज अबाउट मेकिंग द वेल्थ फॉर द जनरेशंस। राइट। सो आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर एक कंपनी के शेयर होल्डर आप बनते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो शेयर होल्डर किस कंपनी का? बीजी का। और बीजी किस, यूएस के अंदर जाकर के अगर जो अपने आप को लिस्ट करेगी आईपीओ में, राइट, सो वहां के स्टॉक में आपका शेयर होल्डर। आई मीन दैट्स सो अमेजिंग। Friends, what are we waiting for? This is the moment. This is the career plan for us. Level 7, ये हमारा कॉमन एंड अल्टीमेट गोल होना चाहिए। और अब तो हमारे पास में वो रीजन है कि हमें लेवल 7 बनना क्यों है। राइट। सो यस, लेवल 7 शुड बी एंड मस्ट बी आवर अल्टीमेट गोल। थैंक यू सर, ओवर टू यू। And even farther, even more than that. Yeah, we're trying यस, to इवन 12, लेवल 12 तक आपको जाना है, हम सबको जाना है। राइट सर। ओके। work it. Of course, there is a specific plan. 2026 will be a glorious year for sure, friends. So we're talking about these points and these examples, not just to show that someone is good or someone is bad, or someone is working more and someone is not. No, we're just trying to express that everything is possible. They're just ordinary people like you that started from scratch. I remember I called them personally one by one since they just joined Beijing. Someone goes fast, someone goes slower, but it's all individual. It's all up to you. So, and finally, I want to remind everyone, BG is shared venture, the career of all around our dreams. So I'm deeply aware of the responsibilities I bear and have never forgotten your trust. Challenges may still lie ahead, but also as long as we stay focused and united, no storm can stop our progress. And next, I will hand the time over to Mr. Abhishek Pandey, my friend, who will share his experience. I'm confident it will be valuable to you all. I'm also going to listen. राइट All सर, right. थैंक यू। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। ऑलराइट। सो जैसा अभी स्टीफन्स ने लास्ट अपना स्टेटमेंट दिया, कि देखिए, उनको भी पता है कि मार्केट में क्या चैलेंजेस हैं। एंड वो बहुत डीपली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। हर एक मार्केट में बीजेस अराउंड इन मोर देन 100, इन 120 कंट्रीज। सो हर कंट्री, हर रीजन, उनके लिए एक नया चैलेंज होता है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो हर कंट्री के अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तरीके से समझते हुए, निभाते हुए, वहाँ के चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करते हैं। और कोई भी चैलेंज बीजी की जर्नी को रोक नहीं सकता। मेरे जैसा एक नॉर्मल पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन भी 4 साढ़े 4 महीने के अंदर लेवल 6 अगर पहुंच सकता है, सो हम सभी लोग पहुंच सकते हैं। हम सभी लोग। हाँ, किसी का सफ़र हो सकता है कि ये लेवल क्वालिफाई करने में कोई थोड़ा स्लो होगा, कोई थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन पहुंचेंगे सब, अगर हम स्टेबल रहेंगे तो। बहुत ब्राइट जर्नी है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है बीजी का आने वाले सालों में। अभी हमारा 26 अभी आने वाला है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। तो इतना ब्राइट फ्यूचर होने के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। और हमें अपनी इस जर्नी को किसी भी तरह से रुकने नहीं देना है। किसी भी एंगल से हमें लो फील नहीं करना है। हाँ, कभी कभी चैलेंजेस आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन वो चैलेंजेस ओवरकम करते हुए हमें आगे की जर्नी को, कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। लास्टली मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बीजी हम सबके लिए है और हमेशा के लिए है। यही समय है, सही समय है, लग जाइए।
वेट एंड वॉच वाले लोग भी जो हैं वो भी ट्रेड प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। सो अभी वेटिंग एंड वॉचिंग टाइम पीरियड से आप थोड़ा सा बाहर आइए, और बीजी को अब आप अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो यस, अभी बीजी को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी बिल्डिंग इज द की सक्सेस फॉर एनी बिजनेस, स्पेशली फॉर बीजी और आपके लिए भी। और यहाँ पे पैसिव एक्टिव इनकम के साथ साथ यहाँ पे रिकग्निशन भी है। आप देख रहे हैं, मुझे खुद को यकीन नहीं होता, ये मेरे लिए प्लेजर है कि आज सर के साथ में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब 4 महीने पहले मैंने सोचा नहीं था, ये एक सपना सच होने के बराबर है। तो आप समझिए कि अगर मेरी ज़िंदगी और आप सबकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टीफन सर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बीजी प्लेटफॉर्म। किसी भी तरह के चैलेंजेस को, किसी भी तरह के र्यूमर्स को या डाउट्स को अपने मन में आने ही मत दीजिए, किसी भी तरह से। क्योंकि अगर आप उन डाउट्स और चैलेंजेस से स्टक हुए तो आप किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं फ्रेंड्स। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा एट द सेम टाइम कि यहाँ पे बीजी को कंपेयर मत करिए। वैसे तो कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बीजी टिपिकल एमएलएम नहीं है, टिपिकल आरओआई नहीं है, ऐसे हमेशा से हम ये चीज़ बोलते आए हैं। इसको एमएलएम ट्वीट करना बंद कर दीजिए, और बीजी को दिल से प्रमोट करिए, ये हमारे लिए करियर प्लान है। बाकी ये जो प्रमोशनल एक्टिविटी है, इसको गिफ्ट की तरह लेके चलिए, कंसिडर करिए, जैसे हमें दिवाली पे गिफ्ट मिला था, ये वीकली गिफ्ट वीक, इसको आप कंसिडर करिए। और बीजी सदा के लिए हमारे साथ में बना हुआ है सर। थैंक यू। आई थिंक इफ यू वांट टू कंक्लूड समथिंग, आई कंक्लूडेड माई सेल्फ। थैंक यू। Oh, that was a fine speech. So, yes, fine speech was truly inspiring, although I didn't understood a lot. But everyone, let go of doubts and arm yourself because with learning, open your heart, share values sincerely. So focus on your goals and take action to create a future where each of us holds equity and enjoys financial freedom because we treat everyone in BG, no matter what level he is, fairly and transparently. So, of course, I would also like to say that maybe some of you are thinking that, all right, this person, he's level 7 just because probably he's good with communicating with people or is just uh, luck. No, it isn't. It's just because a person truly focused on learning about the platform, about the project, and he knows what he's talking about, right? So when you're sure, when you're talking about something that you actually know, that you have facts, proofs, and everything, it will be easier for you to talk to people and to, of course, share your experience. That's all that it is, all that requires. राइट। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहली चीज़ कि बीजी के लिए और स्टीफन सर के लिए हम सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो हम में से कोई भी पर्सन हो, किसी भी लेवल पर हो। किसी पर्सन ने आज ज्वाइन किया हो या 6 महीने या 1 साल पहले ज्वाइन किया हो, किसी भी लेवल पर हो, हर एक पर्सन इम्पॉर्टेंट है, इक्वल है। और ये सबसे अच्छी बात है, ओपन डोर पॉलिसी है यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई पर्सन का हायर लेवल क्वालिफाई हुआ है, अचीव हुआ है, लेवल 5, लेवल 6 या लेवल 7, तो वो इस वजह से हुआ होगा कि हाँ, उनको बहुत अच्छे से बात करनी आती है या बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है प्रोजेक्ट को लेकर के। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी पर्सन अगर हायर लेवल पे पहुंचे हैं तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस हैं कि वो अपनी मेहनत से पहुंचे हैं यहाँ पे, वो अपनी लगन से पहुंचे हैं। उनके अंदर एक ज़ील था कुछ सीखने का, कुछ कर दिखाने का। वो हमेशा से फोकस रहे अपने गोल को लेकर के, अपने टारगेट्स को लेकर के। और हमेशा उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा डेडिकेटेडली फोकस के साथ काम करते चले गए, एक्शन में करते, कभी भी अपने आप को स्पीड ब्रेकर नहीं आने दिया, और चैलेंजेस आए तो उनको ओवरकम किया, आगे बढ़े। इस वजह से कोई भी अपने लेवल को हाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किस्मत से चीज़ें बदलती हों, किस्मत के साथ आपके एक्शन आपकी किस्मत को बदल सकती हैं। तो यही बीजी का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फलसफा है, और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ अल्टीमेटली बहुत ही ब्राइट फ्यूचर, अगर आप अपने गोल पर फोकस है ना, ट्रस्ट अस, ट्रस्ट अस, ट्रस्ट बीजी, ट्रस्ट स्टीफन बियर्ड, कि यहाँ पर हम सभी लोग जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं फ्रेंड्स। राइट, थैंक यू। And first of all, trust yourself.
because without trust in yourself, the people around you will not feel this trust or your confidence. That's for sure. I'm telling it from my own experience. When I started BG back in 2018, before I signed a contract with DS Jacks. So yeah, friends, just I wish you a happy Thanksgiving. It's already starting almost. So and I also hope that everyone can use this Thanksgiving event to create more income and value for yourselves and your team. So thank you all for listening. I appreciate your time and see you next time. Thank you. Thank you, Abby. We'll talk later. All right. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.